पहुंचते हैं, and firmly if we are holding that our goal, then this illness is nothing. This illness is left lower quadrant of this axis. Now, whether we will upgrade ourselves or degrade ourselves is will be decided by our own efforts and of course the blessings of Almighty. So I will proceed towards the next. If we are all normal, normal in the sense, suppose कुछ physical ailment है, but मेरे मन पे उसका कुछ भी असर नहीं है. हमको बहुत सारे उदाहरणों का पता है. स्वामी रामकृष्ण परमहंस सभी को पता है कि शरीर को कुछ भी होने दें, हमारे मन को तो कुछ नहीं हुआ है. ये शरीर है, कपड़े बदलने के साथ बदलता है. तो ये गोल हमारा परफेक्शन टुवर्ड्स परफेक्शन, हमारा गोल, अगर यह गोल हमको योग देता है. मॉडर्न साइंस तो हमको थोड़ा जो कुछ हुआ है उसमें से हीलिंग देता है. इसीलिए दोनों साइंसेस अगर मिलाते हैं तो ये होलिस्टिक साइंस बन जाता है. ये सिंपल लाइफस्टाइल जो मैडम मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ना एक काम करिए ना, एक फिर से इसको शेयर करिए, शेयर जो है वो निकालिए और फिर वापस रीशेयर कीजिए, क्योंकि एक लाइन आई है बीच में, किसी ने तो कुछ तो किया है। ओके, वर्क लाइफ इम्बैलेंस है. We have to recognize that first I have to accept. Acceptance is the first goal, the first step towards our goal of healing, of treatment and getting reach towards well-being. Uh, अभी ये स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है? Okay, and see what we do is कुछ दवाई लेते हैं. When we become aware at the age of 40-45, when aging slowly starts and we become aware of our health, till then we are sleeping, enjoying the life, eating, sleeping, watching TV, watching and moving around. No word of ill health. But एक बार हमको कुछ भी हो जाए तो हम क्या करते हैं? देखो, यहाँ बुक पढ़ रहे हैं लेकिन गूगल भी ढूंढते हैं. बट दैट इज ऑल स्टॉप गैप सॉल्यूशन. थोड़ा सा अच्छा लगेगा, छोड़ देते हैं. लेकिन हमको इस पर slowly we will come towards arthritis. Why arthritis is separate than other hypertension, diabetes, blood, as we said, so many list of ailments, because it's uh, undisputable, or it's a unique quality, unique symptom, which is not there in other illnesses, that is of pain. When because of the pain in the joints and muscles, we get disturbed very fast. We can't sleep sometimes, means can't eat, the whole day, whole lifestyle gets disturbed. So from psychosomatic illnesses we'll come to the specific orthopedic or disorders or arthritis. Last time we have seen the classification: organic, non-organic or functional, medical, modern science classification, as well as yogic classification, psychosomatic illnesses, or vyadhi. Vyadhi is purely physical causes, maybe infection or trauma. So any disability, any problem with joints and muscles, we will have to go step by step according to modern science and according to yogic science. We are going to see both the treatment plans. There are many treatments, but we are going to be focused over here to take home some message. And हम सभी को योग शिक्षक या योग साधक होने के नाते कम से कम हमारे इलाज हम खुद कर सकते हैं क्या, इसके लिए थोड़े से हम टिप्स इसमें देखने वाले हैं, जो मेरे अनुभव में मुझे बहुत ऐसा मन में आता है कि जितने जल्दी ये सभी तक पहुंचेंगे, उतने हमको जो एक प्रार्थना है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम. आरती मीन्स पेन, वेदना. अगर हम किसी का दुख दूर कर सकते हैं तो हमको और कुछ नहीं चाहिए. तो यही भाव से हम आज का ये ट्रीटमेंट प्रोग्राम शुरू करते हैं. अगर कोई भी ट्रीटमेंट, अगर कोई भी पेन हमको किसी भी जॉइंट में आया, वेदर इट इज स्पॉन्डिलोसिस, whether it is a simple frozen shoulder, ankle pain, knee pain, hip joint pain, what will we do?
first we will take rest, because that rest and time are the best healers. It is a age old ये कहावत है कि टाइम और काल, विश्रांति और मतलब रेस्ट एंड टाइम, ये दो अपने अच्छे हीलर्स हैं। तो आप थोड़ी सी रेस्ट ले लेंगे, तब तक अब हमको पता चलता है कि ये मुझे क्यों हुआ है। ये रेस्ट सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं है, रेस्ट तो हमको सोचने के लिए है। कट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड कम टुवर्ड्स योर सेल्फ। आप बेड में लेटेंगे तब हमारे सारे विचार दूर हो जाते हैं, आंखें बंद करेंगे तो हम अपनी अंतरात्मा तक पहुंचते हैं। तो दिस इज द मेन एम ऑफ टेकिंग बेड रेस्ट with relief positions. This relief positions part we are going to see in the next few slides. But first is bed rest in all the acute and painful disorders. आवाज येतोय ना फार कुत्र्याचा काय? माझा पोचतोय ना आवाज? थोडं मोठ्याने बोलू का? तो बाहेर आहे पण येस मॅम, येतोय आवाज. येतोय. Second level of treatment, second step of treatment is medication. Actually bed rest and medication go hand in hand nowadays. पहले जमाने में दादी होती थी, कुछ निकाल के देती थी अपनी बटुए से, ये ले लो दर्द कम हो जाएगा। उस जमाने में कुछ हल्दी या वो पत्ते थे, जो पेड़ के पत्ते हैं, हरी पत्ती, वो उसका रस निकाल के लगाओ तो अच्छा हो जाता था। ये अब पीछे हो गया है। हमारा पूरा भरोसा अपने वेस्टर्न मेडिकेशन पे हो गया है। कोई बात नहीं, अगर इफ वी आर गोइंग टू स्टिक विथ इट डजंट मैटर, बट वेरी बैड इज सेल्फ मेडिकेशन। डॉक्टर ने हमको कुछ गोली लिख के दी, अभी तो पता चल गया कि ये गोली से मेरा पेन निकल जाता है। व्हाट वी डू इज नेक्स्ट टाइम पेन हुआ, हाँ वो तो गोली बहुत अच्छी थी, दर्द तो पूरा निकल गया। बट व्हाट हैपेंस, एवरी मेडिकेशन आप अभी गूगल कर सकते हैं। आप जो मेडिसिन खाएंगे तो पहले आप गूगल करने की आदत डालिए, उसके साइड इफेक्ट्स देख लीजिए। अपने मन से कोई भी मेडिसिन कभी भी मत लीजिए। और दूसरा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, कोई भी, वी हैव एज आई सेड देयर इज अ मॉल ऑफ ट्रीटमेंट। यूनानी है, मसाज है, इतने सारे हैं। अपने योग शास्त्र में ऐसे कहा जाता है कि आउट ऑफ 100 पीपल ओनली 5 पीपल नीड रियल मेडिसिन और मेडिकल हेल्प। सो इसीलिए पहले हमको खुद को जानना चाहिए कि मेरा जो दुख दर्द है कौन से जॉइंट में है, उसका कॉज क्या है। अगर वो जॉइंट एंकल जॉइंट में है तो मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर पूरे शरीर में खाने की क्या जरूरत है। कांट आई टाई बैंडेज, कांट आई मॉलिश मसाज अ लिटिल, थोड़ा गर्म पानी से पारी में पैर रख सकते क्या? ये सब कभी सोचता है। दिस इज ऑल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन मॉडर्न मेडिसिन। इट इज नॉट दैट ये आयुर्वेदिक ही है, ऐसा। ये दोनों में सेम है आजकल, तो ऐसा सोचेंगे ना तो इवन डॉक्टर्स सजेस्ट द सेम थिंग। तो ये मेडिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी steroids are given in rheumatoid arthritis. I've seen, which is very very important, very very helpful. I've seen arthritis in children of the age 15, 16, 20, which is very बहुत लोगों को होता है। और अक्यूट फेज में अगर हम पहले 1-2 महीने अच्छे मेडिसिन मिल जाए तो वो आर्थराइटिस टोटल कंट्रोल में आता है। तब हमारे घरेलू इलाज, हम कितने दिन तक, ये मेडिकेशन के बारे में वन प्रिंसिपल शुड बी देयर। व्हेन आई एम टेकिंग मेडिसिन एट दैट टाइम आई एम हैप्पी। मतलब ये मेडिकेशन हमको उस वक्त अच्छा आराम मिलता है और खाने के बाद भी आराम मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर बोलते नहीं नहीं पहले तो आपको दर्द बढ़ेगा फिर कम होगा, तो देन टेक दैट मेडिसिन स्केप्टिकली। ओके, मतलब ऐसा बढ़ने देना फिर कंट्रोल में लाना, ये दिस इज वेरी, मतलब ये थोड़ा सा रिस्की है। तीसरी बात है काउंसलिंग। काउंसलिंग ये कौन किस पर करेगा? एक्चुअली ये स्व संवाद, जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक, इज द बेस्ट टॉक। काउंसलिंग जब डॉक्टर करते हैं तो आपको 10 सवाल पूछेंगे, या डॉक्टर आपको आपका आईना दिखाएंगे। आईना मीन्स व्हाट? दे विल शो यू द मिरर, दे विल डू द रिफ्लेक्शन, दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, which is actually the history decides the cause of your ailment. आपको ये क्यों हुआ? ये होने के बहुत सारी काजेस है, बहुत सिंपल। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ,
तो क्यों हुआ? गए 8-10 दिन हुए, मैं जिस करवट पे सोती हूँ, उस करवट पे मेरा कंधा और गर्दन बहुत दुखती है। सुबह में तो हाथ में नंबनेस आता है, टिंगलिंग आता है, झुंझुनी आती है। सी योर, मेरा ये एक सेंटेंस आपको बहुत सारी चीजें बता के जाता है। सो दिस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, whether you tell it to a doctor or you just have a self talk. सो दिस काउंसलिंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक डर हमेशा मैंने जो देखा है कि मॉडर्न मेडिसिन आजकल में, एक डॉक्टर B.M. हेगड़े, ही इज अ डायरेक्टर इन मंगलोर में जो कॉलेज है, वहाँ के वो डॉक्टर डायरेक्टर है। ही हैज सो मेनी वीडियोज। ही इज सेइंग मॉडर्न मेडिसिन इज क्रिएटिंग ए taboo and a fear in your mind, in a patient's mind, and that fear will keep the patient rolling amongst doctors. I don't know the reality, but at least I will not get caught in it by getting mentally controlled by others. Means what? If somebody tells me ये डर है, हाँ ठीक है ना, सांप भी आया तो क्या हुआ? ये जो डर नाम की चीज है, काउंसलिंग से ये डर पूरा निकाल देना चाहिए। कोरोना के बारे में आप सोचते हैं, कोरोना को, हु फॉल्स प्रे इन कोरोना, आप सोचेंगे थोड़ा तो जिनके मन में डर है वो उनको वेलकम करते हैं। मतलब ये भी सेंटेंस बहुत बहुत ही विचार से करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना हमारे घर तक कभी आएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन हम फियरलेस रहेंगे। ये अभिनिवेश जो योगा में हम बोलते हैं, फियर ऑफ डेथ एंड डिजायर, अर्जेंट डिजायर टू लिव, ये हर एक में रहता है। और ये जो हमारा डर है वो हमको पूरा शेक करता है। लेकिन हम अगर फ्यूचर देखेंगे, दिस इज शोन ओनली बाय योग, कि आपको जो आगे आने वाला है उसको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमको कोरोना नहीं होगा, लेकिन हमको कभी तो जाना है, तो कोरोना आने से क्या डरने की बात है? कल परसों कभी मता नहीं, आज का प्रेजेंट टेंस हम क्यों गवाए? तो दिस काउंसलिंग टेल्स यू लिव इन प्रेजेंट। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वी आर गोइंग टू सी लेटर। सर्वाइकल कॉलर, लंबर बेल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सी डॉक्टर आपको बोलते हैं कमर में दर्द है, आपको 3 दिन तो कम से कम ट्रैक्शन से लेटना पड़ेगा। आप बोलते हैं नहीं नहीं मेरा टारगेट है, परसों बैंक का मेरा ऑडिट है, लास्ट डे है 31 मार्च है, हाउ कैन आई लाई डाउन इन द बेड? अप्लाई योर सर्वाइकल बेल्ट, लंबर बेल्ट, वर्क फॉर 3 days, रिमूव द बेल्ट एंड 3 दिन के लिए बाद में सो जाओ, आराम करो। सोने जैसा कोई इलाज नहीं। बट इफ यू कांट स्लीप देन यू अप्लाई द बेल्ट्स, बट देयर इज अ प्री कंडीशन। if you apply the belts you will have to release them to do the exercises. Without exercises belts will be futile, it will cause, take you towards failure. कुछ दिनों के बाद कमर का बेल्ट है, आप 3 महीने लगाओ और निकाल दो, बाद में एब्डोमिनल, अपना एब्डोमिन इतना प्रोट्रूड होगा, बल्ज होगा कि वो कंट्रोल में लाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये कॉलर बेल्ट्स, एंकल बेल्ट्स ये बहुत अच्छे हैं, उसका फायदा बहुत है। लेकिन जो ये बेल्ट्स लगाते हैं उनको प्री रिक्विजिट इज देयर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना ही है। विदाउट बेल्ट आप नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन विथ बेल्ट, बेल्ट निकाल कर आपको कुछ देर तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इंजेक्शन थेरेपी, सर्जरी, ऑफ कोर्स दे आर नॉट द डिसीजंस ऑफ पेशेंट्स, they are the decisions and implementation both of the doctors. हम कुछ भी इलाज नहीं कर सकते, तो लास्ट इलाज है इंजेक्शन एंड सर्जरी। ओनली थिंग इज, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि विच आर द इमरजेंसीज। इमरजेंसीज आर पैरालिसिस। कभी कभी कमर में इतना दर्द आता है, हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि कमर का दर्द इग्नोर रहता है, इग्नोर होता है, और कुछ दिनों के बाद फुट ड्रॉप होता है, पंजा, पैर का अंगूठा, आप अपने आंखों से देखते रहिए, आपको कमर में बहुत दर्द है, वीकनेस है, चलने में वीकनेस है, यू आर ड्रैगिंग द फुट। एक टेस्ट है जो आपको ऑपरेशन की इमरजेंसी बता सकता है, वो है अपना ग्रेड टो है थोड़ा सा ऊपर उठा के देखिए। तो ग्रेड टो पूरी ताकत से ऊपर उठता है तब तक आपको कमर के ऑपरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। इसलिए ये सर्जरीज, इंजेक्शन लेना न लेना, ये आपकी क्रॉनिसिटी, अक्यूटनेस, इस पर निर्भर करता है। थोड़ा सा फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ।
There is no discrimination, much discrimination except electrotherapy. Electrotherapy is done in physiotherapy. Occupational therapy is more of a psychological part, more of practical part, day-to-day lifestyle. Physical therapy is exercise in the bed with so many gadgets. Occupational therapy is you work, आपको काम करते समय आपको how do you use your body, hot fermentation, gait training, how do you walk? If you walk correctly, your knee pain comes under control, your back pain control comes under control. We'll see in next few slides. Then there is a traction for neck and lumbar spine. Then there is a manipulation. Some are experts in manipulation, yeah, uh, physical manual therapy. And see, how do we decide what to give and what not to give? See, we should have a bifocal vision. What immediate and what in the long term. How long can we try? So go with your trials, results, go on checking it retrospectively, and then go ahead with other modalities. बट सपोज आपको हमको अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो कमर को एंड परमानेंटली हमको अभी नी रिप्लेसमेंट हो गया, नी में फ्रैक्चर हो गया और कुछ हैंडीकैपनेस आ गया, तो डोंट हेजिटेट टू यूज वॉकर, क्रचेस, स्टिक, cane means stick, and wheelchair, because our goal, long term goal is happiness, bliss, everlasting happiness. अगर आपके हैप्पीनेस में अगर पैर का घुटना दुखता है तो दुखते हुए घुटने से चलो 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 करने के बजाय आपका दाहिना घुटना दुखता है तो बाएं हाथ में स्टिक पकड़ के देखिए तो कैसे ही आप बाएं हाथ में स्टिक पकड़ेंगे तो आपका दाहिना घुटना दुखना तुरंत कम हो जाएगा, और कम होगा तो आपको ऑपरेशन को आप थोड़ा सा ऑपरेशन पोस्टपोन कर सकेंगे. तो इतनी छोटी सी चीज एक्सेप्टेंस, अगेन एक्सेप्टेंस is the key towards our healing and painlessness or relief from pain. We have seen yogic modalities last time. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की बहुत ज़रूरत मुझे लगती है कि हम अलग अलग फेजेस में जाते हैं. अगर हमारे सामने 25 साल का फुटबॉल प्लेयर सामने आ जाए तो शैल वी टेल देम कुछ मंत्र बोलो, मन को शांत करो. So ultimately everything goes with age and sex. अभी हाथ में उंगलियों में वीकनेस है, बहुत वीकनेस है. हस्बैंड, घर में हस्बैंड है तो आप बोलो उसको भाजी काटो, he will never do. So we have to give activities or suggest modalities or the tools for healing according to the nature of the patient, age of the patient, sex of the patient. So every time, while we have a mall, but we have to select the activities and yogic modalities. Now, according to our institutions, we generally go, we treat the patients. But I feel we should always think out of box. Asanas and kriyas and everything is done for 1 hour in the morning or in the evening or थोड़ा सा बीच में, फिर पूरे दिन योग तो नहीं रहता है. बट ऐसे बहुत सारे आसन है कि हम सिंपल उत्कट आसन है या हनुमंतासन है, सुबह की प्रैक्टिस में करने के बजाय हमारा थोड़ा सा काम हो गया, अभी हम हनुमंतासन में बैठेंगे और थोड़ा सा काम बैठे बैठे पेपर पढ़ना है या पद्मासन में बैठकर बैक स्ट्रेट करके थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके टीवी देखेंगे. मतलब यू विल स्प्लिट ऑल द आसनास थ्रू आउट अ डे, पूरे दिन में. और सचमुच हम कहा जाए तो इतने सारे आसन हैं कि हम आसनों में रहेंगे तो हमारा स्पाइन अच्छा रहेगा. क्रियाज, कुछ संस्थाएं कहती है कि क्रियाज डेली करनी चाहिए, कुछ संस्थाएं कहती है क्रिया वंस इन अ वीक करनी चाहिए, ट्वाइस अ वीक करनी चाहिए. बट सी बेस्ट थिंग इज टू लर्न, टू सी एट योर सेल्फ. मेरे शरीर की जरूरत क्या है, एसिडिटी, कफ वात पित्त का इम्बैलेंस, डाइट एंड क्रियाज दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. बहुत सिंपल है कि मुझे एसिडिटी इज मोस्ट प्रिवेलिंग कंडीशन अमंग्स गर्ल्स टुडे एंड मदर्स. cause we will not go into the cause but we will go into the treatment. बहुत सारे छोटे छोटे उपायों से ये एसिडिटी, रोज की एसिडिटी ट्रीट करो तो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक एसिडिटी विल नॉट डेवलप. एसिडिटी टेक्स यू टू अ हेडेक,
acidity to takes you to cervical spondylosis, spondylotic pain. Unless you correct acidity, your cervical pain will not heal. You may not be knowing this connection, but generally डॉक्टर पूछते हैं आपके दोनों कंधे दुखते हैं क्या, are you suffering from diabetes? There is a connection of underlying other diseases with your joint. So always ये योगा में ये जो तीन modalities दी है, we are at physical level, we are not at pranic level, we are not mental level, we are not at आत्मिक level. हम योगी नहीं बने हैं, we are all at देह भाव. हम बोलते हैं ना कि हमारे शरीर की तरफ है, तो हमको आसन क्रिया डाइट पूरे विजिलेंस के साथ कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी चाहिए. थोड़ा थोड़ा करो, बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन हमारी ट्रीटमेंट इसी में आधी ट्रीटमेंट हो जाती है. नेक्स्ट इज प्राणायाम. प्राणायाम डॉक्टर नागरत्ना एज ए सेड ऑलवेज सेड कि आपको फ्रोजन शक्ति है ना, फ्रोजन शोल्डर है ना, तो आपकी प्राण शक्ति ये शोल्डर में बढ़ गई है. यू हैव टू रिमूव दैट एक्सेस प्राण शक्ति एंड यू टू थ्रो इट टुवर्ड्स बाजू के जॉइंट्स में. मीन्स यू टू डिस्पर्स इट फ्रॉम द एक्सेस प्राण शक्ति. हाउ? थ्रू slow and rhythmic movements. मीन्स जल्दी से फास्ट मूवमेंट्स नहीं करने चाहिए, विगरस मूवमेंट्स नहीं करने चाहिए. यू टू ऑलवेज कीप इन माइंड स्लोइंग डाउन इज द मंत्र फॉर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स. नाउ मेंटल मंत्र, जप, डिवोशनल सॉन्ग्स, डिसिप्लिनरी रूल्स. मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि जिनके नी में पेन है, आधा घंटा भजन के बाद भी उनके घुटने नहीं दुखते. ये कैसे? दिस इज ऑल योर अगेन कम्स टू योर माइंड. तो आपके दिन में हमको ऐसे बताया गया है अपने गुरुओं से कि आपके 80 उम्र में आपको ये क्या मंत्र जप, भगवत गीता 80 70, ठीक है, अभी तो हमने बेस्ट आसनास करने चाहिए, परफेक्शन. लेकिन ऐसा नहीं है. जो हमको 60 के उम्र में करना है वो हमको 40 के उम्र में सोचना है. हाँ, जो सोचना हम मन में लाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने में 20 साल कैसे निकल जाते हैं, और जो हमको 40s में सोचना है उसको हमको 20s में, क्योंकि before 25 your body is excellent, it is cooperative, it is so flexible, whatever you do is body will cooperate. But after 30s we won't be able to go to the perfection of asanas. Dharana, dhyan, equilibrium, balance, stability, health, eternal bliss, they are all deeper. So we will go towards karma, dhyana, bhakti later. But now whether it is yoga or exercise, we have to decide the regime. Regime is protocol, and I think every one of us should follow all the conditions given in this regime. As I said, Swami Kovalananda said, asana should be done according to the need and capacity and of an individual. And here I have added state of pain. आपकी पेन, आपके शरीर में पेन है या पेन नहीं है. अगर आपके पास शरीर में पेन है तो यू हैव टू अटेंड दैट पेन. यू टू ऑब्जर्व ये पेन कैसे कम होता है. सुबह में ज्यादा होता है, रात को ज्यादा होता है, या दिन में होता है. ये सब उसके अनुसार हम आगे जाएंगे तो उसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं. इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, टाइप, टाइम, लेवल ऑफ एक्टिविटी, यू टू मेंटेन द रेगुलरिटी. जिस आपके जॉइंट में ज्यादा दर्द है वो जॉइंट आपको 3 या 4 में दिन में 3-4 बार कम से कम आपको मूव करना ही चाहिए. योगा हमको बोलता, योगा में हम 1 घंटा प्रैक्टिस करके दिन भर भूल जाते हैं. आफ्टर नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर बोलते हैं हर 2 घंटे के बाद थोड़ा मूवमेंट्स नी में करना चाहिए. अवॉइड कंपैरिजन, कंपटीशन. हम बार बार बोलते हैं लेकिन योगा में हम अनअवॉइडेबल कंपटीशन, कंपैरिजन हमारी एग्जाम्स में, हमारे प्रैक्टिसेस में आ ही जाती है. वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, बिकॉज मैंने योगा में आने के बाद इतने सारे पेशेंट्स के एग्जाम्स के वक्त टेंशन देखे हैं. मैंने खुद ने एमए करते समय मेरे घुटने में ऐसा अनुभव किया कि फॉर 1 whole month I could not sit down comfortably because there was a swelling in the knee. I cooled down. मैं फेल भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं, मुझे मेरे जीवन में सक्सेसफुल होना है. I have to remain happy. I have to calm down my mind irrespective of my knee pain. And I think God gave me that pain just to check my mental status. बाद में I could overcome because of the yoga itself. Rest periods, yoga nidra, need not
I need not mention anything because अपने डॉक्टर अजीत ओक is with you. He must be taking yoga nidra. He will take it with excellence, utter excellence. In physiotherapy, we have different types of exercises. Isometric, iso means same and metric means length. Your muscles will not move, but still they will work. If you are holding the weight in the hand, the muscle is not moving, it is maintaining its same length, but still muscle is contracted. So weightlifting, squatting position, because muscles are working, they are called isometric. And all our final postures of asana in which we are doing pranadharana, they are all isometric. I have avoided that big slide which is very very interesting. I will send it for you, but today I am not discussing because then हम बहुत चर्चा करते बैठेंगे आइसोमेट्रिक अच्छा है या आइसोटोनिक अच्छा है या डायनामिक अच्छा है. आप कोई भी एक्सरसाइज करो, आपका शरीर की क्षमता देखते हुए करो. आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, डायनामिक एंड एरोबिक. यहाँ आइसोटोनिक है. ये वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये जो मूवमेंट्स है जो कार्डियो पल्मोनरी एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं, ये प्लीज करेक्ट दिस आइसोटोनिक. आइसोमेट्रिक को आइसोटोनिक कीजिए तो ताकि ये टोन का स्टेबल रहता है लेकिन मूवमेंट्स रहती है. तो ये एक्सरसाइजेस ये आइसोटोनिक है. एंड देयर आर स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस लाइक breathing exercises. Grades of exercises are again very important. हम पैसिव एक्सरसाइजेस हमने लास्ट टाइम देखा था कि मसल कितनी स्ट्रेंथ है. इफ द मसल इज नॉट मूविंग एट ऑल, बहुत तकलीफ हो रही है उठाने में, रखने में, ऑलवेज टेक हेल्प. दैट इज कॉल्ड पैसिव. टेक हेल्प, मैनुअल हेल्प. दूसरा हाथ लगा के हाथ को उठाइए. यूज पुली, स्लिंग, मशीन. नी रिप्लेसमेंट में एक पूरा सीपीएम कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन आता है कि जिस पर पैर रखो तो पैर अपने आप से नजदीक आता है, दूर जाता है. तो ये रहता है machine passive movement. Active assistive is I can lift my hand up little bit, but thoda dusre. So actively I can lift, but I need some assistance. So this is a second grade. Third is active and independent. I can move the hand independently, but I can't take the weight in hand and lift the hand. So it is active. And progressive resistive means if I can hold the weight in hand, maybe 1 kg, maybe 2 kg, and I can complete the movement. I am able to complete the movement. That is called progressive resistive. We have to consider all these steps while giving treatment to others or giving movements to other. हमको होलिस्टिकली अगर ट्रीट करना है, फिर भी हमको पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि हमको ये जॉइंट में पेन है, यू हैव टू फर्स्ट. लास्ट टाइम मैंने एक चार्ट दिखाया था कि वी हैव टू इवैल्यूएट 10 जॉइंट्स. आपको पूछना है कि इन 10 जॉइंट्स में तो आपको कहाँ कहाँ दर्द है. वी विल कीप आवर ओन रिकॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट. एंड ये हम बाद में देखते हैं अगर वक्त मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में बात की थी कि whatever yoga we practice for 1 hour for asana pranayam, it should get manifested, it should get expressed in our daily life through karma yoga, through bhakti yoga, through jnana yoga. What is common in this? Yoga means remove your desire, an intense desire which is materialistic in goal. That is which is through हम बोलते हैं कि मेरे senses की need है. No, that need should keep aside. but मेरी आत्मा की क्या जरूरत है. अभी हम देख रहे हैं कोरोना में ऐसे हीरोज हम देख रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स देख रहे हैं कि खुद की जान धोखे में डालते हुए सेवा कर रहे हैं. बहुत सारे लोग दान कर रहे हैं. हर रोज एक ऐसा काम करो कि मेरी नींद अच्छी हो, क्योंकि मेरी नींद मेरी हीलिंग करती है. अपने नींद में अपना आज्ञा चक्र, अपनी पीनियल ग्लैंड विच इज हीलिंग पोर्शन ऑफ द बॉडी, वो काम करता है. इसीलिए अच्छी नींद के लिए कुछ अच्छा काम, सत्कृत्य चिंतन करना चाहिए. भक्ति योग है प्योर लव. तो ये प्रेम, चित्त शुद्धि, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड. तो ये सब अगर होता है, ज्ञान योग कि अपना खुद का स्वाध्याय, मेरा खुद का स्वाध्ययन, ध्यान धारणा, गुरु ग्रंथ, ये सारे अगर हमारे लाइफ में थोड़े थोड़े पैमाने में अगर हम लाते हैं तो हमारा सचमुच का योग शुरू होता है. ठीक है, 4 आसन नहीं हुए
लेकिन मेरा स्पिरिचुअल बेस तो चालू है, ये देखना बहुत जरूरी है। नाउ ये संधि योग क्या है? मैंने एक उसको नाम दिया है कि संधि योग का गोल क्या होना है। संधि मीन्स जॉइंट, तो जॉइंट पेन अगर किसको है तो हमारा गोल क्या क्या होना चाहिए? इट फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आसनास, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, आप एंटी टॉप्सी टर्वी पोस्चर्स, एंटीवर्टेड पोस्चर शुड बी रिमूव्ड, पूरा निकाल दो। 1 महीना जाने दो, 2 महीना जाने दो, जो जो आसन में गर्दन पर वजन आता है तो सिंप्लिसिटी ऑफ मूवमेंट्स, रिलैक्सेशन शुड बी देयर शुड बी पेन रिलीफ। आप ट्रायल्स करो, योर बॉडी इज योर लैबोरेटरी, यू कैन डू द ट्रायल एरर करेक्शन करके करते हम ये रिलीफ तक जा सकते हैं। इट हैज टू बी साइंटिफिक बेस्ड। साइंस मीन नॉट जस्ट मॉडर्न साइंस। मुझे ऐसे एक पेशेंट की याद है कि शी वाज अ वेरी ओल्ड पेशेंट. She came with some knee pain or something, and we had a conference of 3 4 patients talking, chatting, and there was a neck pain patient in the clinic, and she said वो पुराने जमाने में हम वो डमरू रखते थे, शंकर का बजाने का डमरू, या माप्ट, जो जो नव नव शादीशुदा औरत जो घर में प्रवेश करती है तो पैर में वो चावल रख के जो बर्तन उसको हम पैर से ढकेलते हैं, तो शेर म्हणतात ऐसा हम त्याला, शेर करते हैं। मराठीत शेर म्हणतात आणि मी केलेलं आहे ते. शेर आणि हा, माप्ट माप्ट. मापट. हाँ, तर ये अगर जब से उसने बताया था तो हमने वो टॉवेल का रोल करके हमने इतने सारे प्रयोग 15-20 सालों से हम कर रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, यूएस यूके सब लोग अभी जो कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, तो ये इलाज 50% से ज्यादा रिलीफ देता है जो हम आगे देखने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक बेस, जो हमारे एक्सपीरियंस में ज्यादा है और नॉट जस्ट हमारे साइंस के किताबों में क्या दिया है। नाउ दैट लेडी, ओल्ड लेडी, शी हैज एक्सपेरिमेंटेड थ्रू उनकी जो फैमिलियल, जो हमारी धरोहर है, हमारे घर में बुजुर्ग जो करते थे, उनमें से ये धरोहर हमने हमको आई है, ये हा वारसा आपल्याला आलेला है। तो ये आजी दादी का बटुआ जो है वो हमको जारी रखना है, उसको ही हम साइंटिफिक बेस बोल सकते हैं। मैंने अभी हल्दी का प्रयोग शुरू किया, बहुत सारा कफ बढ़ गया था। चेकअप करने के लिए हम बहुत दौड़ते हैं, चेकअप करने के लिए दौड़ने से अगर हम पॉजिटिव बन गए तो पहला फियर आ जाता है, चलो बाप रे कोरोना पॉजिटिव। अगर हम पहले 2 दिन हल्दी का दूध, हल्दी का पानी भी पिएंगे, गर्म पानी, तो यू विल गेट इतना सुंदर रिलीफ मिलता है। तुलसी का पानी है, अभी ये कहाँ ढूंढने जाएंगे, ये तो अपने घर में ही है। तो दिस इज अ रियल साइंस। नो बैरियर ऑफ एज एंड सेक्स इन संधि योग, जो हम आगे देखने जाने वाले हैं। इट इज अ थेरेप्यूटिक, हम उसको इलाज के रूप में देखने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ा इलाज है, तो हम दो रोज करते हैं। लेकिन हम खुली आंखों से, एनालिटिकल माइंड से, रैशनल माइंड से, विवेक से देखेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि ये घरेलू इलाज आसान इलाज है। हम उसको छोड़ के कॉमन सेंस इज धीरे धीरे बिकमिंग अनकॉमन, तो हमको ये कॉमन सेंस की तरफ आना है। दूसरा है एनर्जी मैनेजमेंट। जिनके ज्यादा जॉइंट्स में पेन होता है, 2 जॉइंट से ज्यादा, या बिग जॉइंट्स, सर्वाइकल पेन, लंबर पेन, हिप जॉइंट पेन, शोल्डर जॉइंट पेन, ये बड़े बड़े जॉइंट्स है। ये जॉइंट्स बड़े बड़े हैं तो उनके मूवमेंट्स के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। हम सब लोग पवन मुक्तासन करते हैं, लूजनिंग प्रैक्टिस, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये उंगलियां हिलाने को हमको बिल्कुल एनर्जी नहीं लगती है, ब्रीदिंग की जरूरत भी नहीं लगती है। लेकिन हमको ऊपर उठाने से 10 बार नीचे लाएंगे तो मुखदौती करने की, मुखदौती मीन्स वॉल्यूमिनस इंटेंस एक्सलेशन करने की जरूरत लगती है। स्पाइन के कोई भी एक्सरसाइज, उत्थित एकपादासन करके 10 बार श्वास लेना छोड़ना चालू कीजिए, प्राण धारणा, तो आपको पता चलेगा कि हमको कितनी एनर्जी की जरूरत। तो एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, प्राण शक्ति। तो ये प्राण शक्ति की मैनेजमेंट इज जॉइंट मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट। तो ये पेन इज नथिंग बट यूज ऑफ एनर्जी फॉर हीलिंग। वो कैसा कर सकते हैं? वेरी सिंपल मोड ऑफ एनर्जी हीलिंग थ्रू एनर्जी इज योर ब्रीदिंग। मैंने ऐसा बहुत अनुभव गए 20 साल से, मैंने प्रैक्टिस की है 40 सालों से, लेकिन 20 साल मैंने प्रैक्टिस की है विदाउट इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज, विद ब्रीदिंग। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी, आप कोई भी हीट, हॉट फर्मेंटेशन इज एन एनर्जी, बट आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी का आप यूज करने के बजाय आप बाहर की एनर्जी क्यों यूज कर रहे हो?
मैंने ऐसे एक पेशेंट को बताया कि आपको बहुत पेन जब बढ़ जाता है ना, तो आप नाक से श्वास लेके मुंह से एस एस या एस एच स या श ऐसे उच्चार करते हुए आप ब्रीदिंग करते रहिए। तो ये मेरे पेशेंट ने सुना। अंबरनाथ से उनकी केयर टेकर आती थी रोज। वो केयर टेकर अंबरनाथ या विट्ठलवाड़ी से आते समय वो इतनी ट्रेन में भीड़ रहती थी, तो उसने क्या बताया कि मैं आप जो पेशेंट को बताते थे ना, तो वो ट्रेन में से उतरना और चढ़ना हमको इतना टेंशन आता था। तो पहले हम चढ़ते पहले और उतरने से पहले हम 3-4 बार ऐसा करते थे और इतना आराम से होता था। सी दिस literally illiterate person can understand the use of application of use of blowing. This blowing is very important. It relieves your mental and physical and pranic impurities. आपका टेंशन पूरा निकाल देता है। आप कभी भी, अभी मैं कोरोना में मेरी फ्रेंड्स के साथ मैंने प्रयोग किया। आज लेटेस्ट न्यूज आपने पढ़ा होगा कि एक पुणे की डॉक्टर राव ने अपने हस्बैंड पे एक प्रयोग किया। उसने एसी चालू किया और उस एसी के सामने ब्रीदिंग चालू करने के लिए हस्बैंड को बोला। तो ही वाज 88 और 86 समथिंग, इमीडिएटली ही वेंट अप टू 94। वैसे एक आया था, पेट पर लेटो, हाथ में ऑक्सीमीटर लगा और कीप ऑन ब्लोइंग। सी दीज आर ऑल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज immediately to be done at home before going to the hospital. Why can't we yoga people spread that treatment? First aid through yoga is nothing but मुखदवती। जो पातंजल योग सूत्र में जो एक वो क्या सूत्र है, यदा यथा विमत ध्यानाद्वा के पहले जो सूत्र है, ये बहुत श्वास लेकर मुंह से छोड़ना। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। तो ये जो सिंपल मीन्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट बिकम्स अवर मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट इन दिस टुडे। Our take home message number 1 today is exhale a lot, your carbon dioxide will go out, ऑटोमेटिकली कुर्सी मिलेगी ऑक्सीजन के लिए। जब तक आप बहुत जोरों से श्वास ले रहे हैं, आपको ऑक्सीजन को अंदर बैठने को जगह नहीं है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकना पड़ेगा। दिस इज एनर्जी मैनेजमेंट, It लाइफस्टाइल can be मॉडिफिकेशन। it can be one type of the catharsis also. Yes, of course, it is a mental and physical both. Catharsis is throw out your problems, throw out your irritating, irrational, bizarre thoughts of the mind, because mind is the cause of everything. तो आपको रात को सोए हैं, नींद नहीं लगती है, किताब लेके पढ़ने के लिए उठना पड़ेगा, लेकिन आपको श्वास छोड़ने के लिए कीप ऑन ब्लोइंग ब्लोइंग ब्लोइंग। 3-4 बार हो गया, मेडिटेट, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, होल्ड द ब्रेथ, अगेन ब्लो आउट, होल्ड द ब्रेथ फॉर अ व्हाइल। सी आपके मन के विचार निकल जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर आई फेल्ट इन लास्ट 20 years इज नथिंग बट आसना में, प्राणायाम में, आप शुद्धि क्रिया करते हैं, शुद्धि क्रिया का बहुत सारा डर आपके मन में रहता है। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैंने खुद का बोलना ये अपने योगा में अच्छा नहीं लगता है, बट आई हैव सीन अवर गुरुज ऑल्सो, जो अस्थमा के लिए यहाँ एंटर हो गए। ऐसे एक गुरु है कि अस्थमा है, अक्यूट है, एडमिट होना पड़ता था हर साल, साल में 2 बार, लेकिन गए 35 साल, अभी उनका देहांत हो गया, लेकिन 35 साल केवल वो प्राणायाम के जरिए उनकी हेल्थ को बनाए रखे और आखिर के 15 दिन छोड़कर वो ही वॉज मोबाइल एंड हेल्दी जस्ट थ्रू अवर ब्रीदिंग एंड शुद्धि क्रिया। आपकी शुद्धि क्रिया नहीं जम रही है, आप ब्रीद आउट करो। नाक में वो वेसन नेति करनी है, तो आप पहले ब्रीद आउट करो। छींक आती है, छींक आने दो, बाद में ब्रीद आउट करो और एक्शन करो, ब्रीद आउट एंड एक्शन। दैट इज द बेस्ट वे टू डू इवन शुद्धि क्रिया। Now we will go to the universal laws. There are 3 important laws. All is one, and to understand ourselves, let us understand the laws of existence. हम क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमारे अस्तित्व के पीछे क्या लॉज है। ये यूनिवर्सल लॉज है, ये इंडिविजुअल, पिंडी ते ब्रह्मांडी, ये हमको मन में रखना चाहिए। ये क्या है लॉज? ये लॉज है एवरीथिंग इज कनेक्टेड इंटरनली,
रिलेटेड इंटरनली एंड डिपेंडेंट। हमारी सारी सिस्टम्स देखो, कोई एक सिस्टम काम नहीं करेगी तो पूरी सिस्टम धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाती है। ये जैसे मशीन के फैक्ट्री में जैसे पहिए रहते हैं वैसे रहता है। सो वी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, डिपेंडेंट एंड रिलेटेड। एंड एक पार्ट अगर हम दूर निकालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इट इज हैज अ यूनिक पर्पस टू फुलफिल एंड फंक्शन टू परफॉर्म एंड रोल टू प्ले। ये अपने लाइफ में भी, हमारी फैमिली में भी वैसा ही है। And third law of existence is the part will survive only when it is related to the whole. So अपना oneness of existence, see the last line, हम सब एक है, that is अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। ये सारे फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है ये हमारी मोडालिटीज में बहुत सारे एक्सरसाइजेस एक जगह पे हम दे सकते हैं। एक अच्छा है कि आप इसमें स्लिंग्स है, स्प्रिंग्स है, सब कुछ इसमें लटका के आप उसको असिस्टिव भी बना सकते हैं, रेजिस्टिव बना सकते हैं, एक्टिव भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशंस। आगे जाएंगे, मसल्स का फटीग, मसल्स की ऑक्सीजन सप्लाई, एनर्जी कंजम्पशन, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। कोई भी आसन एक्सरसाइज में हमको थकान नहीं आनी चाहिए। If the muscle goes in fatigue, you have to stop the exercises immediately. Tremors आते हैं, don't force yourself to, आज नहीं तो कल करेंगे। There is always a next time. This is a rule. हमको आज ही सब कुछ हासिल नहीं करना है। ऑक्सीजन सप्लाई जब कम होता है तब हम तुरंत एनारोबिक रेस्पिरेशन पे जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड बढ़ता है और एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ने लगता है। Actually, all these are interdependent symptoms we have to keep in mind while doing yoga sadhana or any exercise and posture now. ये स्लाइड में थोड़ा सा स्कीप करती हूँ और प्रैक्टिकल पे जाती हूँ कि इफ पोस्चर इज पुअर it will always worsen the neck pain and back pain. So right posture, just by correcting the posture, not even by exercises, you will relieve the pain. How? We will see next. There is a good Turkish proverb. हमारे कमर में, गर्दन में जब बहुत अक्यूट पेन होता है तो विदाउट थिंकिंग इन द माइंड आप सो जाओ, बिकॉज सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन एंड नी जॉइंट्स, दे आर कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर ऑफ वेट। अपना सर्वाइकल स्पाइन है, अपने हेड का 5-6 किलो का वेट उठाता है। कमर है 50% ऑफ बॉडी वेट, 35-36 केजीज, 40 केजीज। एंड नीज एंड हील्स, ये दो जॉइंट्स है, वो तो अपना 100%, हम पहले एक दाहिने पैर से फिर बाएं पैर से, दाहिने पैर से, तो अपना बॉडी वेट 70 केजी 80 केजी है, तो पूरा बॉडी वेट अगर एंकल और नी को उठाना पड़ता है। एंड इफ दे आर पेनिंग, you have to stop doing all the activities which are painful. Walk, रुक जाओ, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्टैंडिंग पोस्चर्स भी आप मत करो। कुछ दिनों के लिए आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खड़े रहने के बाद अगर पेन होता है तो डोंट डू इट। नेवर स्टैंड अप when you can sit down. You have option of sitting down. Why do you stand up? Never sit down when you can lie down, because whenever you are lying down you are offloaded. There is no weight working on your weight bearing joints. This is again I will see just if we can no शायद आती है ये फिल्म, I have tried, no, forget. Will अगर वक्त मिलेगा तो हम बताएंगे, नहीं तो I will send it to विजय जी। विजय कभी भी आप बता सकते हैं। This is a wrong posture, you can just make out. This is a wrong posture, this is again a wrong posture. See, this is excessive curve, this is obliterated curve, this is not a right curve, but this is a right curve, this is a balanced posture. Okay, now this is a line of gravity, plumb line you can say. This is a plumb line in the normal posture. ये कहाँ आनी चाहिए? Then the weight bearing is correct. Now if the protruded abdomen, either in pregnancy or जिसका abdomen protrude हो जाता है, तो क्या होता है? See immediately the spine, this is called lordosis exaggerated, बढ़ गया है. Okay, see this. Now what happens? में कर्सर दिख रहा है क्या? कर्सर दिख रहा है? दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। यस ओके, तो ये जो लो बैक, कहाँ गया? हाँ, ये जो लो बैक का पेन है, ये अगर अपना पोस्चर, abdominal
बल्जिंग है, देयर इज नो बोन ओवर एब्डोमेन, तो ये अगर बल्जिंग है तो दिस स्पाइन विल डेफिनेटली गेट। अच्छा ठीक है, कमर को देखो, exaggerated spine will increase the bending of the knees and cervical because our plumb line automatically adjusts itself through compensatory posture of the neck and knees. So आपका abdomen is a central point, so you have to hold the abdomen or do तड़ागी मुद्रा, do पवन मुक्तासन, make a habit of doing अपना शुद्धि क्रियाज which are very very important, उडियान अग्निसार, देन प्राणायाम में बंद लगाओ, उडियान बंद, पर अपना फर्स्ट गोल, इमीडिएट गोल मस्ट बी एब्डोमिनल टोन अप. ओके, now getting up for the spinal cases, what is important, see, हम बोलते हैं साइड लाइन में उठो, आप दिस पोस्चर ऑफ फोल्डिंग द लेग विल ऑलवेज रिलीव द लो बैक पेन. सो आप सो जाएंगे तब उल्टा है ना, 4-3-2-1, सॉरी, दिस इज 1-2-3-4 ऑफ गेटिंग अप. 4-3-2-1 is lying down. Whenever you lying down, take support of the both the hands, sleep on one side with both folded knees, and come in the first posture, but stay in that posture for 5-10 minutes. आपको कमर में अगर दर्द है तो तुरंत पैरों को सीधा मत कीजिए. दिस इज ए बालकासन. बालासन इज, बच्चे ऐसा सोते हैं कभी कभी पैर फोल्ड करके, आप जितनी देर पैर फोल्ड करके सोएंगे आपको कमर में दर्द कम रहेगा. नाउ कभी कैसा मैट्रेस हमने यूज करना चाहिए, the first and second mattress is wrong, third mattress is keeping your spine straight. So whatever mattress your body curvatures are getting accommodated, that mattress you should use. And how will you come to know? While getting up in the morning. Now incorrect lifting position and right position, what is the difference in the, sorry, in these both the postures, जो previous था वो भी, आपका हेवी ऑब्जेक्ट है, कमर में दर्द है तो उठाओ या नहीं उठाओ, उठाओ, लेकिन टेक प्रिकॉशंस. ये दोनों पैर में अंतर होना चाहिए. योर नीज शुड बी फोल्डेड, यू शुड कम क्लोजर टू योर ऑब्जेक्ट, हेवी ऑब्जेक्ट. तो आप देखो ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड योर लेग्स. एंड फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट is you have to blow out, you have to take your tummy in, hold your tummy in, और टाई समथिंग, जैसे वेट लिफ्टर्स पैर में कमर में पट्टा लगाते हैं, पेट पर बांधते हैं, तो योर लोअर एब्डोमेन गेट्स टाइड अप और आप वजन उठा सकते हैं. सो इसीलिए बेल्ट का यूज करना बहुत, इट इज फंक्शनल यूज. आपका दर्द कम करने के लिए हेल्प होती है. जो बहुत 8-10 घंटे काम करने के लिए बैठते हैं, दर्द होता है, आप छुट्टी नहीं ले सकते तो गर्दन में बेल्ट लगाओ, थोड़ी देर के बाद निकाल दो. तो स्केप्टिकल यूज ऑफ द बेल्ट विल ऑलवेज हेल्प. This is again the same, wrong way and right way. Always pull the weight, push the weight, don't pull. वॉशिंग मशीन है, सोफा है, स्लिप डिस्क के लिए ये बहुत अच्छी वजह है. आपके थोड़ा कमर में दर्द है और आपने पुल किया तो आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा. 90% था वो 100% हो जाएगा. So always take care. Never pull the weight towards your, because your body lower back will have to work more. These are all temporary, not permanent. आप ऐसा हमेशा करना ही चाहिए नहीं. When you have acute pain, अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दर्द नहीं है तो आपको सिर्फ जैसे उम्र बढ़ेगी तब ये आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. While taking out the weight from luggage from the डिक्की, तो आप एक पैर को खाली फोल्ड करो. एक पैर फोल्ड करने से कमर का दर्द हमेशा कम हो जाता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक डिटेल्स हम पहले देखेंगे. दिस इज ए आइकॉनिक पोस्चर फॉर मल्टीपल जॉइंट पेन. सी आई विल count the joints. If you have finger pain, wrist pain, elbow pain, shoulder pain, neck pain, you take a roll. This is आपण म्हणतो मापटं किंवा डमरू, या आप 500 ml की बिस्लेरी पानी डाल के ले लो, या टॉवेल का रोल बनाओ और हाथों को ऊपर डालो. अगर हाथों में दर्द है तो आप हाथ शरीर से दूर रखो, लेकिन आपके हाथ शरीर से थोड़े दूर रखने चाहिए तो आपको शोल्डर पेन कम हो सकता है. पेनफुल पोजीशन नहीं होनी चाहिए. दिस शुड बी कंफर्टेबल पोस्चर, स्थिरम सुखम आसनम. यू विल एंजॉय दिस पोस्चर. इतनी देर आपका शरीर
परमिशन दे रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं। सर्वाइकल फॉर 15 मिनट, पैर को आप 15 मिनट आधा घंटे तक रख सकते हैं जब तक पैर में नमनेस नहीं आ जाए। बिलीव मी, फॉर लोअर लिम्स, हील पेन, आपको क्रैम्प्स आते हैं एंकल्स में या काफ मसल्स में, तो हील पेन के लिए काफ मसल क्रैम्प, वेरिकोज वेन्स इन काफ एंड थाई, नी पेन, नी जॉइंट पेन आपको बहुत बढ़ गया है, बहुत नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, ये आपका पहला इलाज है। और लो बैक पेन, मतलब आपके सभी कमर के नीचे के प्रॉब्लम्स है तो आप ये रोल ऐसे रखेंगे, कमर के ऊपर के प्रॉब्लम्स है तो ये रोल गर्दन के नीचे रख सकते हैं। आप क्या नहीं करेंगे, जो अवॉइड ऑलवेज, कि आपके घुटने के नीचे आप तकिया नहीं रखेंगे तो आपको सायटिका का पेन जरूर आएगा। तो आपको सायटिका ये पेन नहीं चाहिए तो घुटने को सपोर्ट करना ही चाहिए। दिस इज अ मस्ट प्रे रिक्विजिट फॉर लोअर बैक पेन एंड नी पेन ऑल्सो। आप नी को सपोर्ट नहीं देंगे तो दूसरे दिन से नी भी दर्द करना चालू करेगा एंड लो बैक पेन या आपका साइटिक पेन है वो बढ़ सकता है। और इसी में आप देखिए कि अपना जो पवन मुक्तासन है, सूक्ष्म व्यायाम है, तो सूक्ष्म व्यायाम में हमने क्या करना चाहिए, गो अगेंस्ट ग्रेविटी। देर आर एम्पल प्रूफ्स या एम्पल रिसर्च में उसका ये बताया गया है कि ग्रेविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जॉइंट वेदर इट इज जॉइंट पेन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अस्थमा। कैसे करना हम कभी और कभी देखेंगे कि अस्थमा भी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है। तो हमको ये अगेंस्ट ग्रेविटी लेना है तो पुल योर एंकल्स टुवर्ड्स योर सेल्फ। तो ये भी एक पोस्चर है कि आप घुटने के नीचे पिलो रखकर पूरी रात भी सो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एंकल के नीचे नहीं रखेंगे। जिनको रात भर घुटने में कमर में दुखता है तो रात भर आप सिर्फ घुटने के नीचे एक पिलो रखिए ताकि आपको कमर सुबह में उठते समय कमर को दर्द नहीं होगा। या बहुत ऊंचे लोग हैं तो पिलो चेयर अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑल्सो, तो यू कैन यूज अ चेयर। बट थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए भी सोएंगे तो आपको बहुत सारा आराम मिल सकता है। अभी हेल्दी टिप्स फॉर वेल्दी लिविंग। आपको जब कमर में दर्द होता है तब आप पैर सीधा रखते हुए और साथ में रखते हुए नहीं सोएंगे, उसके बजाय घुटने के नीचे कुछ पिलो, या आप हॉस्पिटल में आईसीयू में ऐसे बेड देखते कि आप 3 दिन के लिए बुखार है और सो गए, घर में भी आप 3 दिन के बुखार में सो जाएंगे तो विदाउट एनी कॉज, नो स्लिप डेज, नथिंग, आपकी कमर बहुत पकड़ जाती है। उसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस है, वो कभी आपको मौका मिलेगा तो हम डिटेल में बोलेंगे। लेकिन आप अगर इनएक्टिविटी करेंगे, मतलब योगा में ऐसा कहा है, नॉन यूज, डिसयूज एंड ओवर यूज, ये तीनों आपके इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो आप जब सो जाते हैं 3 दिन के लिए तो आपके एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं, तो कमर के मसल्स टाइट हो जाते हैं। दिस इज द मेन इम्बैलेंस। हमारे पोस्चरल मसल्स होते हैं वो वाइट फाइबर्स होते हैं, एंड जो पोस्चरल मसल्स मतलब खड़ा रहने के लिए, बैठने के लिए जो नहीं काम करते हैं, दे आर द रेड फाइबर्स। व्हेन यू आर इन द बेड फॉर लॉन्ग टाइम, रेड फाइबर्स बिकम वीक, वाइट फाइबर्स बिकम ओवर टाइट, इसलिए कमर का दर्द बढ़ता है। घुटने का भी, घुटने का में जो नी कैप के मसल्स है वो वीक बन जाते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई शुड बी यू शुड टेक केयर ऑफ पोस्चर्स। अब बुखार में एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, आराम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये केयर लेंगे तो आप 3 दिन के बाद जब खड़े रहेंगे तब आपको ये कमर दर्द का प्रॉब्लम नहीं आएगा। या आप करवट पे लेटेंगे पैरों को पेट के पास लेते हुए तो आपको आराम लगेगा। पेट पर सिर्फ पिलो के सिवा नहीं लेटेंगे, हम आगे देखेंगे। सीधा सिटिंग पोस्चर, आपके आईटी प्रोफेशनल्स कैसे बैठते होंगे, आई कैन, यू कैन इमेजिन। अगर आप बैठते हैं या बहुत देर तक पढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड इज गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग पोस्चर। सी यू शुड गिव सपोर्ट टू द लोअर बैक। लोअर बैक के अगर वो गैप दिख रहा है तो उसमें अच्छा पिलो डालो, फिर भी दैट इज नॉट द आंसर, बिकॉज आपका देखो स्पाइन, नेक इज, so if you sit in this posture for a long time, your low back will not pain first, your neck will pain first. So the right posture in sitting is very 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 important. Now this is a research actually, it done in Lokmanya Tilak Hospital, Sion Hospital.
कि आप डिफरेंट पोजीशन में आपकी L2 लंबर सेकंड डिस्क पर कितना कंप्रेशन या कितने यूनिट्स प्रेशर आता है. So see, in 20, when you are lying down on the back, there is minimal pressure 25. थोड़ा सा ज्यादा 35 में आता है, बट स्टिल आपका पेन कम हो जाता है, प्रेशर आता है, लेकिन ये पोजीशन में आपको कमर में थोड़ा सा आराम मिल सकता है. बट आप आगे वाले सब पोस्चर्स देखिए, करवट पे लेटते समय आप उनकी कमर की पोजीशन देखिए, पैर नीचे रखते हुए, तब प्रेशर 75. व्हेन यू आर स्टैंडिंग इट इज 100. व्हेन यू आर सिटिंग इन वज्रासन, पद्मासन, और व्हेन यू आर सिटिंग क्रॉस लेगेड पोस्चर इट इज 125. आप पेट पर लेट के 180 देखिए, आपका नौकासन. मतलब हम हमारे मन में योग में हमको ऐसे बताया जाता है, इफ यू हैव बैक पेन डू बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर, बट इट्स नॉट ट्रू. यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग. जिसमें आपको पेन होता है यू शुड अवॉइड फर्स्ट. जिसमें पेन रिलीफ होता है ऐसे ही पोस्चर से हमको शुरुआत करनी है. स्क्वाटिंग पोस्चर, व्हाई डू द डॉक्टर से कि स्क्वाटिंग मत करो. 150 170 उत्कटासन जैसे आसन है. सिंपल उत्थित एक पादासन, द्विपादासन. उत्थित द्विपादासन हमको कमर में बहुत दर्द बढ़ा सकता है और आपको द्विपादासन में स्लिप डिस्क भी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको संभालना चाहिए. जब आपके कमर में दर्द है तो उत्थित द्विपादासन आप इतना स्टेडीली नहीं कीजिए, पहले दर्द को जाने दीजिए, फिर आप. दिस इज नॉट फॉर एवर, दिस इज अप टू रिलीफ ऑफ पेन. देन आपको डॉक्टर बोलते हैं नीचे मत बैठिए, घुटने पे वजन आएगा, लेकिन आप क्रॉस लेगेड बैठ सकते हैं, तो नीचे ऊपर उठना घुटने पे जोर दे सकता है, कमर पे दर्द कर सकता है. तो ये एक चेंज इन लाइफस्टाइल जो मैंने बहुत सारे मेनोपॉजल विमेन और बहुत सारे लोगों पे मैंने सजेशन हम बोलते हैं अर्गोनॉमिक केयर. तो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हर एक ऑक्यूपेशन के लिए सजेशंस है, थोड़े ही पैमाने पे मैं आपको बता रही हूँ. तो ये है होम मेकर्स, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सबसे ज्यादा औरतों में है. तो इफ यू वांट टू कंट्रोल नी रिप्लेसमेंट, आप 20 25 30 सालों से ही चेंज ऑफ वे द लाइफस्टाइल आपकी बदल दीजिए. खड़े 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 4 घंटा 6 घंटा काम मत कीजिए. दैट इज अगेन ए की पॉइंट. why your knee get spoiled, why do the cartilage get destroyed, knee pain क्यों चालू होता है, because of standing. if you are walking continuously, if you are sitting, knees will not suffer, but your standing will 100% suffer. See, you can sit like this or sit on the sofa, this platform, or this is the way I have been following in my house since last 20 years, and I could save my knee pain and control my knee pain through this. And you will enjoy the activity. आपके सारे वीडियोस देखने हैं ना, सामने लगा दो और कर्मयोग हो जाएगा. रोज इरिटेटिंग, आप जब बर्तन मांजते होंगे ना, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप सारे घर वालों को बोलते होंगे कि यार क्या लोग सब टीवी पे बैठे देखे हुए और मैं इधर बर्तन मांज रही हूँ रोज रोज 4 बार. और कोरोना के दुनिया में तो, कोरोना के काल में गए 2 साल 1.5 साल, तो हम तो क्या कर रहे हैं, सिट एंड एंजॉय द मोमेंट, ड्यूअल मोमेंट. आप सामने कुछ सुनने के लिए ऑडियो विजुअल लगाओ और ये काम करो. दिस इज द एक्चुअली टेक होम मैसेज. प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, हाउ शुड इट बी. आपके पास ये वीडियो मिलने वाला है, ये ऑडियो अपना, सॉरी, ये प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा. जस्ट गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द पिक्चर. And now this is a long term goal. This is a muscular dystrophy boy. Muscular dystrophy, ये जो इसको बोलते हैं DMD, Duchenne muscular dystrophy. This starts at the age of 6. Actually ये ब्लड में होता है, बट उसका मैनिफेस्टेशन 7-8 ईयर्स के बाद अचानक बच्चा गिरने लगता है, पता नहीं चलता है. उसके काफ मसल्स में स्वेलिंग आने लगता है, हाइपरट्रॉफिंग बोलते हैं उसको. और ये बच्चा फिर धीरे धीरे उसकी पैरों की ताकत चली जाती है, एंकल की, नी की. तो हम एक्सरसाइज तो देते हैं, बट अल्टीमेटली अपने हाथ में सब कुछ नहीं होता है. बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इन आवर हैंड्स. सो इफ यू टेक असिस्टिव डिवाइसेस और एड्स फॉर हेल्प ले लेंगे ऐसे डिवाइसेस की. फॉर्चुनेटली वेस्टर्नर्स हैव done a lot of work in this field.
So इतने सारे गैजेट्स, इतने सारे असिस्टिव डिवाइसेस, देयर इज मोटराइज्ड स्कूटर, आप दो व्हील्स अब तो इंडिया में भी हमको मिलता है। तो मेरे पेशेंट्स हमेशा बोलते रहते हैं कि ठीक है, मेरा एक नी बेंड नहीं होता है, क्या मैं स्कूटर चला सकती हूँ? सो दिस इज इंस्पिरेशन फॉर देम। यस, विथ ऑल मॉडिफिकेशंस ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। So what is spirituality? Swami Vivekananda again says being spiritual is being plain, unpretending, जैसे आप हो वैसे दिखाने की कोशिश करो, सीधे साधे रहो, being just a normal human being, being sensible, being patient. Being spiritual is trying to listen to the universe, trying to experience the beauty in this world. Being spiritual is trying to establish relation with the goodness of people. सो आप ये थ्रू मेडिटेशन, ऑफ कोर्स ये मैंने सिर्फ लाइफस्टाइल में क्या होना चाहिए, आपके मेडिटेशन की ताकत कितनी है कि जो सिर्फ जो अपना भिंग म्हणजे लेंसेस, ये लेंस से आप हीरा परख सकते हैं, या आप लेंस से कागज को जला सकते हैं, इतनी ये मेडिटेशन की ताकत है। तो क्या ये मेडिटेशन 1 घंटा आधा घंटा रोज बैठ के ही करना चाहिए क्या? तो स्वामी विवेकानंद अगेन सेज कि आपकी नाव किसी भंवर में घूम रही है, अटक गई है, पता नहीं क्या होगा, बाहर निकलेगी या बीच में नीचे जाएगी, बट अपना मन मन तो अभी भी स्थिर है। ये मन अपनो हमको पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे सोचने से, मेरे डरने से, मेरे रोने धोने से ये बदलने वाला है क्या? तो नहीं बदलेगा। तो मेडिटेशन इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द consequences of the situation in which through which we are passing, or through which you are which situation we are experiencing. But we definitely, each of us has that brain power. What is brain? We say now, as even scientists say, that in brain there is a mind. So what does the brain do? The brain which sees, it is the brain which sees. तो हम बोलते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, वो हमारी सेंसेस की वजह से हम स्पॉइल कर रहे हैं। हमारी आंखें बहुत बड़ा धोखा देती है, दे आर द कल्प्रिट्स। गुलाब जाम देखने से मुझे खाने की इच्छा होती है, तो हमारे गुनाहगार कौन है? आईज है। बट नो, हमारे आंखों के देखने के पीछे भी कौन है? ब्रेन है, टू इंटरप्रेट। It is the brain which feels, not the body. It is the brain which supersede all the human functions. हमारे सब काम है, ये हमारे ब्रेन की अवेयरनेस की वजह से हम सुपर ह्यूमन लेवल पे कर सकते। ह्यूमन इज एन एक्सेलेंट साइंटिस्ट, एक्सेलेंट परफॉर्मर, and excellence is the quality of human being, not the animals. Yet it is the brain which makes us human, and it is the brain which causes the problem. We will, हमको पता है कि जो ब्रेन सीधा चलता है वही ब्रेन, सो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट प्रॉब्लम्स इन द माइंड। केंद्र बिंदु है मन, एंड कार्य क्षेत्र है हमारा शरीर। जो हमने बोला था, गुरुजी श्री कृष्ण व्यवहार जी हमारे हमेशा बोलते थे, तो हमने क्या करना चाहिए? समर्थ रामदास क्या बोलते थे? समर्थ रामदास मन को मनाच्या श्लोकांनी मनाला शिस्त लावा, आणि दंड बैठका सूर्य नमस्कारांनी शरीराला सवय लावा. So causes are in the brain, but thank God for the brain, it provides the solutions too. तो हर एक ताले की एक चाबी रहती है। So ये चाबी लगा के awareness is the key, mindfulness is the key, and it is not about the exercises, but it is through discovering the sense of oneness in first yourself. हम सिर्फ मेरा नेक पेन है, नेक पेन, नो, गो टू द एसिडिटी, गो टुवर्ड्स योर हेडेक, गो टुवर्ड्स योर लाइफस्टाइल, डाइट फर्स्ट, स्लीप सेकंड, एंड एक्सरसाइज थर्ड। ये ट्रायड हमको भूलना नहीं है। हमको कुछ भी बीमारी आ जाए, हमको ये ट्रायड में करेक्शन होना ही चाहिए, आहार, विहार और विश्रांति। By changing our lifestyle and creating consciousness, it will help to deal us with climatic changes. Let us work towards adopting the yogic lifestyle. Through the same, it is a journey from information to transformation, journey from knowledge to wisdom. Knowledge is a formal knowledge and wisdom is informal knowledge, which comes through your own Atma, and it is a deeper aspect of
आनंदमय कोश. So what are the all the means? I will not spend the time. इतने इसके बारे में तो हम सुनते रहते हैं. कुछ भी करो, आनंद में रहो. पहले materialistic goal, but don't ultimately through materialistic goals don't go towards again दुखों की तरफ जाने वाले नहीं. थोड़ा मटीरियल कार है, विदाउट कार भी आई कैन एंजॉय. आई विल वॉक टुडे. तो ये जैसे भगवत गीता में बताया है कि भक्ति योग में क्या क्या चाहिए. पहले अपनी एम्बिशंस, ईगो, रॉन्ग हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स दूर करो. आपको कुछ भी करना है, सोशल वर्क करना है, घर में करना है, तो आपको ये दूर करना ही पड़ेगा. with desires, with ego, with likes and dislikes, and goals towards fruits. ये जो कर्म फल है, ये फल की तरफ ध्यान लगाते मत बैठिए. कम काम करते जाओ और adjust yourself. पॉझिटिव्ह अप्रोच, डेली रूटीन्स, आहार विहारांचं पथ्यपालन, घरकाम. डोंट अवॉइड दैट. अपने घर में काम करने वाले हैं, लेकिन काम करने वालों के साथ साथ हम काम करेंगे तो देयर इवन देयर हैप्पीनेस विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. अपना हैप्पीनेस उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट. भगवान ने हमको जब पैदा किया तब फाइनेंशियली डिफरेंस करते हुए अपने कर्म कर्म हाँ उनका वो कर्म है, मेरा वो कर्म है, मुझे मिल गया तो मेरी क्या गलती है, ये सब लोग बोलते हैं. लेकिन गलती नहीं है. जैसे भगवत गीता 16वें अध्याय में बताया है दैवासुर संपद विभाग योग में कि अगर आपको भगवान ने इतना सब दिया है तो आपको उसके साथ ट्रस्टी भी बनाया है. यू आर द ट्रस्टी ऑफ योर हेल्थ. सो यू विल डिस्ट्रीब्यूट योर हेल्थ फॉर गुड पर्पज, फॉर goodness of people, not for yourself, not for just materialistic enjoyment. और आप बोलेंगे दूसरों का देखो वो तो कैसा करता है, हर एक जन वैसा ही रहता, हर एक जन वैसा करता है, तो आपको पता नहीं है उसको उसको एवरलास्टिंग ब्लिस या उसको आनंद पर अनपर्टर्ब्ड अनडिस्टर्ब्ड हैप्पीनेस मिलता है कि नहीं. बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग हिम फॉर सम टाइम. बट आपके लिए आप ढूंढो आपकी खुशी किस में है. सेवा, रुग्ण, पेशेंट, हैंडीकैप, मतिमंद, निराधारों की सेवा, गार्डन वर्क, खेलो बहुत सारा. मैंने एक संस्था का मैं काम करती हूँ बच्चों में, स्कूल बॉयज में, स्कूल चिल्ड्रन में. और ऐसा है बच्चे बोलते हैं नहीं हमको नहीं पढ़ना है, इंग्लिश हमको नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है. हमको पता है कि एक क्लास है कि जो इंग्लिश स्कूल कौन सा, मतलब एक टीचर को अभी मैं मिली तो वो बोलता रही थी वी हैव ऑल चिल्ड्रन ऑफ बिजनेसमैन एंड हाईली फाइनेंशियली हाईली क्वालिफाइड पीपल और हाईली वेल ऑफ पीपल. तो ये जो रहता है. तो दूसरा क्लास है कि वो तो अपना सिंपल मदर टंग में भी पढ़ नहीं सकते हैं. तो क्या फर्क है, ये कैसा करेंगे. तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये भगवान उन तक पहुंचा देगा. और देखो आप माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को भी वो वक्त आया, सभी के बारे में ये वक्त आ गया, लेकिन व्हेन दैट इज द टाइम वी हैव टू ऑब्जर्व. तो ये सारे विनकाम शिवनकाम आई जनरली टेल सी आपके उंगलियों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ना, क्यों आप ये एक्सरसाइज बोरिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं. सब्जी काटो, सब्जी बनाओ, लड्डू बनाओ, खिलाओ दूसरों को, ऐसे काम करो. देयर इज गोल. अपना किचन का काम है, जस्ट चेंज योर एटीट्यूड. इट इज गोल ओरिएंटेड, इट इज एंजॉयिंग इफ यू डिसाइड. आप जो सब्जियां क्लीन करते हैं, लहसुन है, ये छोटी छोटी उंगलियां, आप इसमें पर्पस ढूंढो. इतनी सारी लहसुन साफ करेंगे तो आपकी उंगलियां क्यों तकलीफ देगी. सो डू नीटिंग, पेंटिंग, स्टिचिंग. आप एज ओल्ड हो गया वो आता बिजनेस. ये जो लोगों को कमाने वाले बिजनेस है, ऐसा नहीं है. ये लोगों हर एक ने करना चाहिए. म्यूजिक. तो आई विल वेट हियर. दिस इज द लास्ट आई थिंक स्लाइड कि you can through yoga is a common binding passion. I was fascinated when I did my first course. तो मेरे कोर्स में मेरे बाजू में इंजीनियर्स थे, सामने होम मेकर्स थे, पीछे संगीत वाले थे और आगे कुछ स्कल्पटर थे या आईटी प्रोफेशनल्स थे. Yoga can bring everyone under one roof, and that is the beauty of yoga which I've been always fascinated.
तो ये कंपनी आप और कहीं मॉडर्न साइंस में कहीं नहीं पा सकेंगे। सो एक बार आप योग में आए तो ये 4 आसन कम करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन योग की जो डोर आपने पकड़ी है वो आप नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि योग गिव्स यू calmness of mind. Goal of yoga is happiness, but how? It is by calming down your mind. See this tree, we all know this example. There are ripples in the pond whenever there is वो कचरा कूड़ा पत्थर अंदर गिरता है तब, but एक बार pond calms down, you will see the whole reflection of the tree right from the top to bottom. If we calm down our mind, अब हमको भी आत्मदर्शन बहुत दूर नहीं है। एटलीस्ट बाकी लोग क्रिप करेंगे, क्राई करेंगे, तो हम हंसते रहेंगे। दैट इज द मेन डिफरेंस अमंग योग के रास्ते पे जो आ गए हैं, कितना पहुंच गए इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप उस रास्ते पे आ गए तो आपको सारे सारे हैप्पीनेस का शॉवरिंग होता जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको कोई प्रोटेक्ट करने वाली शक्ति मिलती है। आप दूसरे का सोचो तो आपको सोचने वाला आपको जरूर मिलेगा। दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग। मैंने इस लेक्चर में गए 14 साल में इसमें काम कर रही हूँ जॉइंट पेन पर, और आई हैव अवॉइडेड ऑल मेडिकल वर्ड्स। लास्ट लेक्चर में कुछ तो थोड़ा सा करना पड़ा टू जस्ट रिलीव योर फियर एंड टेंशन, but I try to avoid the medical terminologies just to relieve the fear. आप जो योगा में कर रहे हैं, जो स्मूथ सूक्ष्म व्यायाम, they are most important, and if you do them in lying down positions, it will give you maximum relief. So we will stop here, and मेरा last slide यही है. So chitta yoga chitta vritti nirodha, and we will again salute sage Patanjali, who has put forth, who has presented the yoga in all structured manner. Dhanyavad Vijay ji. थैंक I यू think मैम। यू कैन स्टॉप द शेयरिंग। आई विल थैंक्स गिविंग का कार्यक्रम करते हैं, उसके पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस किसी के रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, तो एक क्वेश्चन आया है वैसा। आई विल बिहाफ ऑफ 1 मिनट।